Last lectures we are discussing the law of diminishing marginal utility, right? This law is introduced first time by Professor Gaussen, but actual this law is written by Dr. Alfred Marshall in his book Principles of Economics, which is published in 1890. Okay, sorry for last lectures, I told 1857, that is wrong. 1890, in 1890 this books was published. Okay, Professor Alfred Marshall is written these books. The book's name is Principles of Economics. In this book he first time described the law of diminishing marginal utility. If we are watching the law of diminishing marginal utility, this concept is universal, means in whole world we are watching the same consumers behavior in okay, so consumers behavior is same, and we are also watching that consumers total utility is also increases, but the marginal utility is always decreasing. Okay, so what is the law statement? We are also watching the law statements. When other things is remain constant, the person derives for the increased stock, the things diminishing with every increase in the stock of already he has. So आपको यूटिलिटी की कंसेप्ट ऑलरेडी दी है, उसमें बताया है कि सब सिचुएशन सेम होने के बाद हम जैसे जैसे एक एक चीज़ या कम्युनिटीज़ को कंज्यूम करेंगे, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज़ होती जाएगी, बट मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज़ होती जाएगी, राइट? दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, राइट? This law is written by Dr. Alfred Marshall in his book Principles of Economics, which is published in 1890. Okay, so some kind of things he's keep in his mind to introducing this law and to describe the law. First of all, we can understood the statement other things remain constant in the additional benefits assume experience the single wants which completely suitable to the given point of time. मेरे ख्याल से आप लॉ की टेबल्स को ध्यान दो, 1 2 3 4 5 ये यूनिट्स है कम्युनिटीज़ के. समझो हम एप्पल्स को मानेंगे, वो यूनिट 1 2 3 4 5 6. ओके, सो जैसे ही उसने पहला एप्पल खाया, एक्स एप्पल, फर्स्ट यूनिट खाया समझो, सो फर्स्ट यूनिट खाने के बाद उसको मार्जिनल यूटिलिटी 10% मिली. ओके, व्हेन ही टेकन सेकेंड वन यूनिट ही गॉट मार्जिनल यूटिलिटी 8. जैसे ही उसने दूसरा एप्पल खाया तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी 8 हो गई. थर्ड एप्पल खाया 6, फिर 4 5 पे 2 हो गई, और 6 यूनिट पे 0 हो गई, 7 यूनिट पे वो -2 हो गई. ओके, यही डायग्राम में शो आउट किया है. सो डायग्राम पे एक्स एक्सिस पे दिखाया है एक्स एक्सिस पे दिखाया है कि यूनिट ऑफ कम्युनिटी, वाई पे दिखाया है मार्जिनल यूटिलिटी, MU ये मार्जिनल यूटिलिटी कर है. व्हेन वी आर टेकन वन यूनिट ऑफ द कम्युनिटी 1 2 3 4 5, व्हेन वी आर टेकन द यूनिट्स ऑफ कम्युनिटी, जैसे जैसे हम 1 2 3 4 5 ऐसे कम्युनिटी के यूनिट्स खाएंगे यानी एप्पल खाएंगे, वैसे मार्जिनल यूटिलिटी आपको क्या होती दिखेगी, 10 8 6 4 2 0 एंड -2. दैट मीन्स द यूनिट्स ऑफ कम्युनिटीज इंक्रीजेज, एट द सेम टाइम द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कम्युनिटीज डिक्रीजेज. सो द मार्जिनल यूटिलिटी कर्व जो आपको दिख रहा है सामने, वो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व ऊपर से नीचे की तरफ स्लोपिंग डाउनवर्ड. ओके, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वो आपको ऊपर से नीचे की तरफ डाउनवर्ड होते हुए दिखेगा, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ओके, इसलिए मार्जिनल यूटिलिटी कर्व हमेशा नेगेटिव होता है. ओके, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व ये नेगेटिव होता है. अगर आप टेबल को फिर से एक बार देखोगे तो एट द पॉइंट नंबर 6 द मार्जिनल यूटिलिटी इज गोइंग टू 0. In the same, when we are watching the structures or figures, on the 6th point the marginal utility is going to 0. That means this point is called points of satisfy, means person is fully satisfied and
now he is not ready to take one more units of the commodity. He is totally satisfied and he is not ready to take on one more units. Okay, so marginal utility curve is sloping downward from left to right. This has keep in your mind. Also you can keep the mind that unit of commodities increases, at the same time the marginal utility is decreases. Okay, so keep in your mind this table properly, these structures also keep in your mind properly. Whatever you have to understood, you have to write down in the explanations of diagram. It is not compulsory to write down whatever they are given. Okay, on the x-axis you have to measure units of commodity, on the y-axis you have to measure the marginal utility. Okay, so mu is a marginal utility curve, okay, which is sloping downward from left to right, and it is showing the diminishing marginal utility for every excess unit of the commodity. Okay, so इसके लिए ये लॉ प्रूव करने के लिए कुछ एजम्पशन भी आपको दिखाए हैं जो हमने कल भी सीखे. वन मोर टाइम वी हैव टू रिवाइज इट. फर्स्ट वन इज रेशनलिटी. रेशनलिटी मीन्स व्हाट? द कंज्यूमर्स हु इज़ टेकन द यूनिट्स ऑफ कमोडिटी. जैसे हमने बोला है कि एप्पल के एक एक यूनिट वो कंज्यूम कर रहा है कंज्यूमर्स. सो वो जो कंज्यूमर्स है वो रेशनल होना चाहिए. रेशनल होना चाहिए यानी उसका बिहेवियर नॉर्मल होना चाहिए. वो ऑलरेडी भूखा होना चाहिए तभी वो ये यूनिट्स कंज्यूम कर सकता है, राइट. सो यू हैव टू कीप द पर्सन हु इज़ फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, that person is totally normal behavior, his person is rational and he wants to get maximum satisfaction. ये भी दिमाग में रखना है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन कमाना है. ओके, ऐसा पर्सन होना चाहिए जो आप लोगे. नॉर्मल होना चाहिए. किसी पागल को या किसी भरपेट पर्सन को अगर सामने बैठाओगे तो उसका ऑलरेडी पेट भर चुका है तो वो उसको कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा ये नहीं शो आउट करेगा, राइट. तो इसलिए आपको ऐसा पर्सन सामने रखना है कि जिसका बिहेवियर नॉर्मल है, जो रेशनल है. ओके, दूसरा उन्होंने कहा है देयर इज़ नो पॉसिबल मेजरमेंट टू द कार्डिनल मेजरमेंट. ओके, लॉ ऑफ डीएमयू में दिखाया है कि लॉ ऑफ डीएमयू कार्डिनल मेजरमेंट होता है. कार्डिनल मेजरमेंट यानी जो जो आप यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं उस यूनिट्स को आप न्यूमेरिकली काउंट कर सकते हो. 1 2 3 4 5 ऐसे न्यूमेरिकली काउंट कर सकते हो. उसी के साथ उसकी मार्जिनल यूटिलिटी भी 10 8 6 4 2 0 ऐसे न्यूमेरिकली काउंट कर सकते हो, नंबर्स में काउंट कर सकते हो. ओके, तो जो कम्युनिटी आप लोगे वो नंबर्स में काउंट करने आनी चाहिए. ऐसी कम्युनिटीज़ यहाँ पे एक्सेप्ट करना है. ओके, जैसे आप हवा कितनी लगी एयर का काउंट नहीं कर सकते, सनशाइन काउंट नहीं कर सकते. ओके, ट्रीज़ काउंट नहीं, ट्रीज़ से आने वाला ऑक्सीजन काउंट नहीं कर सकते. तो ऐसी चीज़ें नहीं लेनी है. चीज़ें ऐसी लेनी है जिसको आप न्यूमेरिकली काउंट कर सकते हो. थर्ड, होमोजेनिटी. वॉट एवर द यूनिट्स ऑफ कम्युनिटी यू हैव टू टेकन, देयर साइज, शेप, कलर्स, टेस्ट, चॉइस, प्रेफरेंसेस आर टोटली सेम. ओके, ये भी याद रखना है कि आप जो भी चीज़ वहाँ पे लोगे इस लॉ को प्रूव करने के लिए वो होमोजीनियस होनी चाहिए. मतलब उसकी साइज़, शेप, क्वालिटी, क्वांटिटी, टेस्ट, प्रेफरेंसेस सब सेम होने चाहिए. जैसे अगर आपने एप्पल लिया है तो सारे एप्पल की साइज, शेप, कलर्स, टेस्ट सेम होनी चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा है. नेक्स्ट, कंटिन्यूटी. वॉट एवर द कम्युनिटी यू हैव टू कंज्यूम, जो जो कम्युनिटी आप कंज्यूम करोगे यू हैव टू टेकन आफ्टर 1 by 1. ओके, आपको तुरंत एक के बाद एक लेनी है. यू डोंट बी टेक टू मोर गैप इन 2 कम्युनिटीज़ व्हेन यू हैव टू कंज्यूम. जब आप 2 कम्युनिटीज़ को कंज्यूम करोगे तो उसमें बिल्कुल गैप नहीं रखना है, क्विक सेशन चाहिए. ओके, इसमें टाइम्स को लैप नहीं करना है. टाइम्स को लैप्स नहीं करना है यानी टाइम वेस्ट नहीं करना है. ओके, एक के बाद एक कम्युनिटीज़ को कंज्यूम करना है. नेक्स्ट, रीजनेबिलिटी. वॉट एवर द यूनिट्स ऑफ कम्युनिटी यू हैव टू कंज्यूम, मेक श्योर दैट ऑल साइज़ आर रीजनेबल. जो भी आप यूनिट्स कंज्यूम करोगे आपको ये याद रखना है कि उनकी साइज़ सेम होनी चाहिए.
और उनकी साइज़ रिजनेबल होनी चाहिए, मतलब वो ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए। जैसे अगर एप्पल की जगह आप समझो, एप्पल की जगह आपने अगर आप तरबूज का इस्तेमाल किया, ओके, वाटरमेलन का, तो वाटरमेलन एक भी खाएगा तो भी उसका पेट भरने वाला है, क्योंकि उसकी साइज़ क्या है, बिग है, ओके। उसी तरह अगर आपने उसके ऑपोजिट बेर खाना स्टार्ट किया, ओके, सो अगर आपने बेर लिया है तो बेर की साइज़ बहुत छोटी होती है, तो वो कम से कम आधा किलो खाएगा तो भी उसका पेट नहीं भरेगा। तो ज़्यादा स्मॉल यूनिट भी नहीं लेना है, ज़्यादा बड़ा भी यूनिट नहीं लेना है, ये आपको याद रखना है, ओके। कि अगर आप इस एक्सपेरिमेंट के लिए अगर जो चीज़ ले रहे हो उसमें वो बहुत ज़्यादा बिग नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा स्मॉल भी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, कंसिस्टेंसी, जो भी फैक्टर्स आप ये लॉ प्रूव करते वक्त ये याद रखना को बोला है कि आपकी साइज़, टेस्ट, चॉइस, प्रेफरेंसेस सब सेम होना चाहिए, वो बदलने नहीं चाहिए, राइट। मतलब आपको पहले भी एप्पल पसंद था, अभी भी एप्पल ही पसंद होना चाहिए, उसमें चेंजेस नहीं होने चाहिए। टेस्ट, चॉइस, प्रेफरेंसेस, लाइक्स और डिसलाइक्स उसमें चेंज नहीं होना चाहिए, ओके। जो आपको पहले पसंद था वही आपको बार बार पसंद आना चाहिए, तभी आप इसमें मेजरमेंट कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी, whatever the units of community you have to taken, make sure it has been divisible, मतलब आपको उसके टुकड़े करने आने चाहिए या वो कट होना चाहिए, ये याद रखना है, ओके। क्योंकि अगर एक एक यूनिट कंज्यूम करोगे तो ही ये लॉ प्रूफ होगा। जैसे अगर आप एप्पल खा रहे हो तो एक साथ पूरा एप्पल खा रहे हो तो आपको उस एप्पल से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन पता नहीं चलेगा, एक ही एप्पल में आपका शायद पेट भर जाएगा। हाँ, लेकिन आप उसके स्लाइस कर रहे हो, टुकड़े टुकड़े करके खा रहे हो, तो स्लाइस से आप एक एप्पल पूरा खाओगे, फिर दूसरा एप्पल खाने लगोगे, फिर तीसरा एप्पल खाओगे, तब आपका पेट भरने लगेगा। मीन्स जो भी आप यूनिट कंज्यूम कर रहे हो वो पूरा का पूरा नहीं लेना है, ओके। उसको डिविजिबल करना है, उसको स्लाइस करने आना चाहिए, इसके ऊपर ध्यान देना है, ओके। नेक्स्ट है सिंगल बॉन्ड्स, whatever the commodity you have to use for this experiment, make sure these are single bond। जो भी इसके लिए इस्तेमाल करोगे मेक श्योर करना है कि वो एक ही काम के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, उसके 10 सारे यूज़ नहीं होने चाहिए। जैसे अगर एप्पल है तो वो सिर्फ खाने के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, उसका जूस निकालने के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, उससे बहुत सारे मेडिसिन बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, उससे बियर बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, ड्रिंक्स बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जो भी कम्युनिटी आप परचेस करोगे वो कम्युनिटी सिंगल यूज़ होनी चाहिए। मतलब एप्पल कह रहे हो तो एप्पल सिर्फ खाने के लिए इस्तेमाल करना है, उसका ड्रिंक्स नहीं बनाना है, उसका सॉफ्ट ड्रिंक नहीं बनाना है, उसका लिक्वर नहीं बनाना है, ये याद रखना है, ओके। सो दिस इज़ कॉल्ड द एजम्पशन ऑफ दिस लॉ, ओके। सो मेक श्योर this is the table, you have to keep concentrate on the table, that is one side units is given, second side marginal utility is given, units is increasing 1 2 3 4 5 6 7, at the same time marginal utility is decreases by 10 8 6 4 2 0 -2. Make sure whatever the structures you have to taken or figure you have to taken, write down very properly whatever you have to watch in the structures, you have to put it down, okay. On the x side you have to watching the units of commodity, on y side you have to watching the marginal utility, okay. You have to put each and every units of commodity 1 2 3 4 5 6, and marginal utility is 2 4 6 8 10, okay. The mu is marginal utility curve, okay. Every successive unit the marginal utility is decreases. When you are taken one more units of the commodity, the marginal utility is decreases. So this one is also keep in your mind. The marginal utility curve is sloping downward from left to right. You knows that you are watching this curve, mu line is sloping downward, okay, from left to right, and at the point number 6 the both line are touched to each other, right. Means on the units of unit number 6 the marginal utility is 0, where you have to watching in the diagram on the point number 6 the marginal utility curves and units of commodity curves are common. So this point
the sixth point is called points of satisfy. This point is called points of satisfy. Okay, so marginal utility curve is sloping left to right, it's downward sloping, and it's showing that when the units of commodities increases, when the units of commodity is increases means every successive unit 1 2 3 4 5, the marginal utilities decreases like 10 8 6 4 2 0 and -2. Clear? This is your law of diminishing marginal utility. Whatever the exceptions are given there, we are watching in the next lectures. Okay, these are the revisions lectures, so listen very properly, and if you have any queries, so ask me in the next lectures. Okay, thank you.